स्क्रीन शो हो रही है। Okay. So once again, I'm going to start from the very beginning. जो last session में हमने cover नहीं किया था, the roads that were left untraveled, we're going to go through them again. मैंने आप लोगों से बात कर रहा था tables की. So by now you must have a pretty good idea of what tables are. They are storage means for tabular data, which is composed of some rows and some columns. इसी तरह से आपके पास होते हैं व्यूज. अब व्यूज क्या करते हैं? व्यूज आपके लिए जो होते हैं दे आर वर्चुअल टेबल्स. जिस तरह से यहाँ पे मेरे साथ ऑनलाइन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, दे आर वर्चुअली प्रेजेंट विद मी इन दिस सेशन. कुछ लोगों ने मुझे ऑन साइट किया हुआ है, दे आर physically present here. But some people who join me online, they are virtually present. They are not physically present. उनकी existence कहीं और पे है, but they are here right now with me through online connectivity. इसी तरह से virtual tables का काम क्या होता है? यार यहाँ पे किसी ने अगर mic on किया तो kindly उसको off कर दें और उसको दोबारा turn on ना कीजिएगा. तो views आपके जो काम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि they query some data from the predefined tables that you have. आपके पास कुछ tables already existence में हैं. Views क्या करते हैं? Views select some of the data, perform some sort of actions on the data, some sort of transformations on the data, and then show you the data whenever you use those views to fetch the data. आप इसको wrapper की तरह से consider कर सकते हैं. एक सांचा समझ लें. It's the blueprint or the body of how the data, how you want to access the data when you want to transform it in some way. Views can combine rows and columns from multiple table or another view and have a consolidated view. तो इसके अंदर आप basically what this statement means is कि you can perform joins, you can gather the data from different tables और उसको आप एक particular table के view के अंदर उसको view कर सकते हैं, देख सकते हैं, access कर सकते हैं data को. तो आपके जो views की अगर मैं बात करूं, so views can be used as security mechanisms by letting users access data through the view without granting the users permission to directly access the underlying base tables of the view. What this means is कि views के behind जो backend पे logic लगी हुई होती है, that is abstract to the user, end user. एक बंदे को नहीं पता कि different tables कौन कौन से use हो रहे हैं, उसको बस ये पता है कि view से access कर सकता है वो data को. अब वो data क्या किस format में होगा, किस तरह से filter out हो रहा है, that totally depends on how the backend logic of the views are maintained. It acts as abstract layer to downstream systems. So any change in schema is not exposed, and hence the downstream systems doesn't get affected. इसका मतलब क्या है? कि मतलब कि एक आपके पास it doesn't matter कि आप बैकएंड टेबल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें चेंज कर रहे हैं. लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल था, we'll call it table A, और एक और टेबल था, there was a second table, let's call it table B. ए टेबल के अंदर कुछ आपने जो था पीछे जो बैकएंड डेटाबेस डेवलपर्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स न्यू कॉलम्स ऐड कर दिए टेबल के अंदर. इन टेबल्स का के अंदर से कुछ कॉलम्स आपस में ज्वाइन होके एक व्यू बना रहे थे. व्यू के अंदर की लॉजिक ये थी कि देयर वर पर्टिकुलर कॉलम्स दैट वर बीइंग एक्सेस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर व्यू. So since the column names that were being queried in the view, they did not change, आपके टेबल का स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल टेबल जिधर से आपका डेटा एक्सेस किया जा रहा था, that changed. As a result,
आपके जो views हैं, they will bring out the same data, although the tables at the back end are changed. I hope I'm making sense to you guys. इसकी मैं आप लोगों को implementation भी अभी जल्दी से दिखाऊंगा. अब बात करते हैं triggers की. So triggers are stored procedures in a database. I assume कि आप लोगों ने last session के हवाले से थोड़ी बहुत research की होगी. You must know about stored procedures and functions by now. So I'm going to just start talking about triggers right now. A trigger is a stored procedure in database which automatically invokes whenever a special event in the database occurs. Let's suppose कि कोई new entry हो गई है किसी एक टेबल के अंदर, या कोई अपडेशन हुई है किसी टेबल के अंदर, और उसके ऊपर ट्रिगर लगा हुआ है कि जब भी न्यू एंट्री इस टेबल के अंदर हो तो दूसरे टेबल के अंदर भी कुछ डेटा जाए, कुछ स्पेसिफिक डेटा जाए. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रिगर. इसी तरह से हो सकता है कि ट्रिगर की एक ये भी एग्जांपल दी जा सकती है कि लेट्स सपोज कि एक टेबल के अंदर एंट्री हुई है तो दूसरे टेबल के अंदर उसका रिलेशनशिप बन के सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके एक न्यू रो इंसर्ट हो जाए जो कि डिफाइन करी हो दो टेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रिगर. इट whenever an event occurs, whether it be updation, deletion, or insertion, किसी भी टाइप का एक्शन that activates a trigger can be thought of as a triggering action. I hope I'm clear on that. So अब मैंने आपसे टेबल्स की बात कर ली, व्यूज की बात कर ली, और मैंने साथ के साथ ट्रिगर्स की बात कर ली. अगर आप लोगों को इसके अंदर अभी भी कुछ अनक्लियर है तो bear with me. I'm going to show you a few examples. उससे आप लोगों की जितनी भी वो होंगी ambiguities वो further clear होंगी. Let's move on to constraints. तो constraints क्या होते हैं? Constraints are particular conditions that need to be met in order for the data to be maintained in a database. इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक टेबल था, उसके अंदर यूनिक आईडीज मेंटेन हो रही थी. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स का टेबल है आपके पास, उसके अंदर हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होना चाहिए. जब स्टूडेंट्स का एक यूनिक रोल नंबर होगा आपके पास तो that is a constraint that need to be met. This ensures you can use the unique constraint that ensures each and every single entry in the roll number column would be unique. There are different types of constraints. That was just an example. और जो मेजरली यूज किए जाते हैं वो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को विजिबल होंगे. There is a not null constraint which ensures that a particular column does not have any null values. मतलब कि अगर इसके अंदर कोई null value enter करने की कोशिश की जाएगी तो वो insertion fail हो जाएगी. यूनिक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैल्यूज पूरे टेबल के अंदर जब यूनिक कंस्ट्रेंट आप लोग अप्लाई करेंगे तो वो कंस्ट्रेंट इंश्योर करेगा कि सारी वैल्यूज उस कॉलम में यूनिक हों. प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो आपको प्राइमरी की का अब तक आइडिया हो जाना चाहिए कि प्राइमरी की uniquely identifies all the columns of and all the entries for a particular row. So that is why it can never be null and it is always unique. Foreign key का ये है सीन के it prevents action that would destroy links between tables. अब मजेदार बात यह किसी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो नॉट नल होगी बट अ फॉरेन की कैन बी नल. अब why is that so ये आप लोग इसके ऊपर R&D कीजिएगा. Check ensures that values in a column satisfies a specific condition. So
ये वो कंस्ट्रेंट है, लेट्स सपोज कि एक आप चेक लगा देते हैं कि कंस्ट्रेंट लगवा देते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई भी एंट्रीज आ रही हैं दैट आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, तो दैट इज अ चेक कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई भी एंट्रीज हो रही हैं, डेटा वैल्यूज न्यूमेरिकल एंट्रीज हो रही हैं, तो all those values should always be divisible by 3. This constraint ensures that. Default का की constraint जो है वो make sure करता है कि let's suppose कि आपने एक एंट्री कर दी है रो के अंदर, आपने डिफाइन नहीं किया कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर रो। तो डिफॉल्ट के लिए आपने अगर सेट की होगी वैल्यू कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये वाली चीज जानी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर चीज जो आपने डिफाइन की होगी कि इसके अंदर जानी चाहिए, सिर्फ वही वैल्यू जाएगी, कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। अगर तो वो वैल्यू नल होगी, तो कोई वैल्यू उसके अंदर एंट्री नहीं की जा रही होगी, तो अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज देयर इज अ सिनेरियो वेयर द स्टूडेंट्स कैन हैव अ वाटर बॉटल। आइटम टू कैरी के अंदर, आइटम टू कैरी एक उनका वो है कॉलम है आपके पास स्टूडेंट्स के टेबल में, और उसके अंदर आप जो है डिफॉल्ट आइटम लिख देते हैं कि बैकपैक। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बैकपैक ना लाएं, तो वो स्पेसिफाई कर देते हैं स्पेशली कि हम लोग अपना जो है कोई और आइटम लाएं, या फिर अपना स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो वाटर बॉटल लाएं। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट आपने जो डिफाइन किया था कि बैकपैक की वैल्यू आइटम्स टू कैरी के अंदर वो आ रहे हैं उसका, तो लाजमी तौर पे अगर वो कुछ एंट्री नहीं आ रही उसकी उस वाले पर्टिकुलर रो में, तो उसकी बैकपैक ऑटोमेटिकली एंट्री होगी। इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है डेटाबेसेस की दुनिया में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ द डेटाबेसेस। यू शुड do research on it. I'm not going to explain it in detail, but just to give you an idea, what indexes does is it sort of performs or creates some sort of retrieval method. अगर मैं जो यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनको बताऊं तो they use B-tree algorithms in SQL Server to retrieve data real quickly. अगर मैं नॉन टेक्निकल लोगों को बताऊं तो वो एक ऐसा एल्गोरिदम बीच में अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया होता है उसके अंदर, जिसके थ्रू सर्चिंग एंड द डेटा इज becomes very quick. The operation of search becomes very fast. And I guess that is it for constraints. Now, let me quickly cover the topic of joins. असल में कोर्स कंटेंट ज्यादा है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट इन ऑल द थिंग्स दैट आर ट्रूली नेसेसरी फॉर द कोर्स। जॉइंस की अगर बात की जाए तो देयर इज द लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। यहाँ पर आपके पास जितनी भी बाकी सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनके नेमिंग कन्वेंशंस लिखी हुई हैं, that is just for reference to give you an idea for how these there are subcategories of joins. इनको explicitly स्क्रिप्ट करते हुए मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन आप इनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं इन स्टेट्स को, उसके बारे में बताया हुआ है। So talking about joins, I'm going to start by the very basic one. Let me start from the inner join. Inner join क्या करता है? Let's suppose कि आपके पास दो tables हैं, table A and table B. When you implement an inner join, what it does is कि it brings out all the entities that are in common in both the tables. जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किए होंगे, लेट्स सपोज आपके टेबल ए के अंदर थे स्टूडेंट की एज, उसका स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट का नेम। टेबल बी के और इसके साथ साथ इसके अंदर स्टूडेंट की आईडी भी थी।
इसी तरह से टेबल बी के अंदर उसकी क्लासेस थी, उसकी कोर्सेज थे और उसका डिपार्टमेंट था। अब यहाँ पे अगर आप इनर जॉइन को देखें, इसकी क्यूरी के ऊपर गौर करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर जॉइन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यू स्पेसिफाई कि आपको टेबल ए से कौन कौन सी एंट्रीज चाहिए टू गेट द डेटा। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ टेबल ए से इसकी एज चाहिए, और मुझे साथ में ये टेबल बी से ये चाहिए कि कौन से एज का स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा है। तो डिपार्टमेंट के अंदर एज का एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल गेट सेलेक्ट एज फ्रॉम टेबल ए, डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल बी, उसको इनर ज्वाइन कर दूंगा टेबल फ्रॉम टेबल ए, इनर ज्वाइन टेबल बी। किस बेसिस पे करूंगा? जो कि दोनों के अंदर कॉमन चीज थी मेरे पास, दैट वाज बिल्डिंग द लिंक बिटवीन द टू, दैट इज देयर रोल नंबर, जो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करा था। तो बेस्ड ऑन देयर रोल नंबर्स, ए टेबल ए की इज इक्वल टू टेबल बी की। अब ये की यहाँ पे आप इसको अगर अपनी जहन में इमेजिन कर लें, विजुअलाइज करें कि किस तरह से रोल नंबर की बेसिस पे डेटा आपके पास सारा आ जाएगा। आपके पास एज ग्रुप्स आ जाएंगे टेबल ए के सारे, और जितने भी स्टूडेंट्स थे एनरोल्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनके अंदर आपके पास डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये आपके पास एक डेटा सेट आ गया। अब इसके ऊपर आप फर्दर एनालिसिस के लिए एग्रीगेशन कर सकते हैं कि आप इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका समेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इसके ऊपर आप एग्रीगेशन कर सकते हैं टू परफॉर्म एनालिसिस कि पर्टिकुलर फॉर द पर्टिकुलर एनालिसिस दैट हाउ मेनी what age group, the quantity of age group that belong to a particular department. I hope I'm making sense to you guys. इसी बिल्कुल। तरह से अगर मैं बात करूं आउटर जॉइंस की, तो व्हाट आउटर जॉइंस डज इज कि वो सारे का सारा डेटा जहां जहां पर मैप हो रहा है, वो सारी चीजों को, या फिर मैप नहीं भी हो रहा, नॉट ओनली द डेटा दैट इज मैप बट ऑल्सो द अनमैप डाटा, उन सारी चीजों को एक साथ लेकर आ रहा है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के अंदर दो टाइप्स आपके सामने होंगी यहाँ पे कि फुल आउटर इंक्लूसिव और फुल आउटर इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। इनमें फर्क आपको विजिबली अगर आप देखें तो डिपिक्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव के अंदर ये होता है कि सारी एंट्रीज इन ऑल द टेबल्स, इन बोथ द टेबल्स, और इफ देयर आर मोर देन टू टेबल्स उनके ऊपर भी इस तरह से ही होगा कि सारी की सारी एंट्रीज जिनके अंदर जो कॉमनैलिटीज होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। जो कॉमन नहीं होंगी, अगर लेट्स सपोज टेबल ए के अंदर डेटा प्रेजेंट है लेकिन टेबल बी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, टेबल ए की वैल्यूज जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी। कॉलम नेम्स जो हमने स्पेसिफाई किए होंगे कि टेबल ए से हमें ये वाले कॉलम चाहिए, टेबल बी से हमें ये वाले कॉलम चाहिए, तो वी वुड हैव स्पेसिफाइड दोज कंडीशंस, और बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस अगर हमारे पास कॉमन जो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स अगर फाइंड नहीं हो रहे, कोई भी रोल नंबर मैप्स नहीं हो रहे स्टूडेंट्स के विद यू नो फॉर द डिपार्टमेंट टेबल, तो क्या होगा, हमारे पास जो टेबल बी के अंदर वैल्यूज आएंगी वो नल आ जाएंगी। और अगर टेबल बी के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, टेबल ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहां पर मैप नहीं कर रही, तो टेबल ए के अंदर नल आ जाएंगी। इट गिव्स यू द होल पिक्चर फॉर द डेटा के उनके कॉम्बिनेशन से, कंप्लीट कॉम्बिनेशन से हमारे पास डेटा किस तरह का नजर आएगा। अगर एक्सक्लूसिव की बात करें, ये तो मैंने बात कर ली इंक्लूसिव की, तो एक्सक्लूसिव के अंदर जो हमारे पास कॉमन होंगे, कॉमन एंट्रीज होंगी, इट वुड बी द रिवर्स ऑफ इनर जॉइन। आप ये समझ लें, ए बी के अंदर तो हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ रही थी इनर जॉइन के अंदर जब हमने किया था परफॉर्म के, जो कि दोनों के टेबल्स के अंदर कॉमन थी, दैट वर प्रेजेंट इन टेबल ए एज वेल एज टेबल बी। अगर हम लोग ए बी का कंप्लीट सेट के अंदर से ए बी के इनर जॉइन को माइनस कर दें, तो हमारे पास फुल आउटर एक्सक्लूसिव आ जाएगा, विच मीन्स के वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो ना के कॉमन होंगी टेबल ए में विथ टेबल बी, ना ही वो टेबल बी में कॉमन होगी विथ टेबल ए। We would get all the rest of the data that is uncommon in both tables.
लेफ्ट जॉइन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखें, इसके अंदर लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को इस तरह समझ जाना चाहिए कि जो टेबल आप पहले डिफाइन करते हैं उसको आप लेफ्ट टेबल के तौर पे कंसिडर करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट आप उसकी ज्वाइन की कीवर्ड के बाद यूज कर रहे होंगे, आप उसको टेबल बी कंसिडर करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। आउटर जॉइन एक्सक्लूसिव जो है उसको जो लास्ट क्लियर स्टेटमेंट है उसको जरा एक्सप्लेन करिए। फुल आउटर एक्सक्लूसिव जॉइन में लास्ट और ड्यूरिंग में क्लियर डॉट क्लियर की स्टेटमेंट है उसको जरा बता दें। फुल आउटर तो नुमेर सगीर मुझे कहते हैं कि यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन की एक्सक्लूसिव की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दें। अगर मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, तो लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। सेलेक्ट आपके जो भी कॉलम से फ्रॉम टेबल ए टेबल बी वो आ गए, फ्रॉम टेबल ए। अच्छा, यहाँ पे ए जो आप लोगों को अलग से नजर आ रहा है, टेबल ए के बाद उसने दोबारा से ए लिखा हुआ है, दैट इज एन एलियस। एलियस का मैंने आपको पहले शुरू के एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग में बताया था, दैट इज नथिंग जस्ट निकनेम और एन एलियस। यार काइंडली अपने यहाँ पे ना माइक्स को म्यूट रखिएगा जो यहाँ पे ऑन साइट है। अच्छा, तो यहाँ पे टेबल ए जो है आपका, उसको एलियस दिया हुआ है ए का, और टेबल बी को एलियस दिया हुआ है बी का। दैट इज अ निकनेम फॉर रेफरिंग टू द टेबल्स मोर इजीली। अच्छा, यहाँ पे उसको वो कर रहा है, टेबल ए को फुल आउटर जॉइन विद टेबल बी बेस्ड ऑन some keys that are present in both of the tables। वेयर की कंडीशन को अगर एक्सप्लेन करें तो सिंपल सा वो ये, यहाँ पे उसने कंडीशन ये लगा दी है कि जहां पर ए डॉट की इज नल और बी डॉट की इज नल। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंडीशन है कि ऐसी की जो कि ए के अंदर नल आ रही है या फिर बी के अंदर नल आ रही है, और एंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली। जब कंडीशंस हम लोग करते हैं, आप आई होप आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि एंड ऑपरेटर किस तरह से फंक्शन करता है और ऑपरेटर किस तरह से फंक्शन करता है। तो अगर इसके और की कंडीशन इस तरह से मीट होती है कि आइदर दिस वैल्यू, दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू, या फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो आप इसको इस तरह से समझ लें, अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू इसकी ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से टेबल बी की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, इट वुडंट मैटर इफ दिस वैल्यू इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो और का कॉन्सेप्ट इस तरह से आपका फंक्शन करता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इस इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना निकले तो ये आप जो है बाकी का रिजल्ट सेट हमारे पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? डज इट मेक मोर सेंस टू यू? सिंपली क्लियर नहीं हो रहा कि जो प्राइमरी की वैल्यू वो हो सकती है, नल नहीं हो नल सकती। नहीं हो सकती, तो उस केस में ये कैसे काम करेगा? उस केस में इस तरह से काम कर रहा है, देखो लेट्स सपोज कि आपके ए टेबल के अंदर एक प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन टेबल ए के अंदर जो स्टूडेंट है उसका डेटा डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर नहीं है। दैट मेक सेंस टू यू? या फिर टेबल डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर किसी एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही इंफॉर्मेशन। तो दैट इज दिस कंडीशन। Everybody clear on that? Okay, so I'll take that as a yes and move on. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था लेफ्ट जॉइंस। लेफ्ट जॉइंस फंक्शन इस तरह से करते हैं कि आपके पास जो आप पहले डिफाइन कर रहे हैं टेबल को, कंसिडर देम एज लेफ्ट टेबल्स, एंड द टेबल्स दैट आर बीइंग डिफाइंड आफ्टर द जॉइन कीवर्ड उनको आप राइट टेबल्स के तौर पे कंसिडर करें। तो लेफ्ट इंक्लूसिव के अंदर आप देख सकते हैं कि कंडीशन आपने यहाँ पे लगाई। लेफ्ट इंक्लूसिव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं
तो लेफ्ट का कीवर्ड इसके अंदर सिंपली यूज किया जाएगा। यहाँ पे फॉर सम रीजन इसने लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया हुआ है, बट यू कैन सिंपली यूज लेफ्ट जॉइन एज वेल। तो सेलेक्ट, यहाँ पे आप करेंगे जो भी आपके कॉलम नेम्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट आउटर जॉइन टेबल बी बेस्ड ऑन सम की वैल्यू। तो आपके पास लेफ्ट इंक्लूसिव का आ जाएगा डेटा, which would mean it would contain all the values of table A and only those values of table B that are in common with table A. जो कॉमन नहीं होंगी दोनों टेबल्स के अंदर वैल्यूज वो नहीं आएंगी। इसी तरह से जब लेफ्ट एक्सक्लूसिव का अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हाउ डज दैट फंक्शन, वो इस तरह से काम करेगा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ टेबल ए दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल बी दैट वुड बी लेफ्ट एक्सक्लूसिव। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट्स आपके राइट इंक्लूसिव और राइट एक्सक्लूसिव के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर किसी का कोई सवाल है तो नाउ इज द टाइम। कोई एम्बिग्विटी हो किसी मामले में इसके रिगार्डिंग द जॉइंट्स? गुड। सो I'm going to quickly just go on to the hands-on lab जो कि आपके लिए छोटी सी प्रिपेयर की थी मैंने। Let me start the machine and मुझे बताइएगा जब आपको मेरी वर्चुअल मशीन की विंडो विजिबल हो। Yes, visible now. I hope my screen is visible to all of you. Okay, so let's start. So I'm going to start off by introducing you guys to the IDE that is SSMS. I hope कि आप लोगों ने SSMS अब तक इंस्टॉल कर लिया होगा, SQL सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा और इसके ऊपर क्वेरीज बिल्ड करना शुरू कर दी होंगी। तो बिल्कुल बेसिक चीज जो इसके बारे में बताना चाहूँगा, स्टार्ट करना चाहूँगा जिधर से, दैट इज अ कमेंट। You can use hyphens to define a comment. It is highly recommended for use to use for expressing what the piece of script does. जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ throughout the this demo session कि आपको बता रहा है each statement कि अब क्या कर रही है। What this does is this helps you remember as well कि आपने क्या किया था। When dealing with large amount of SQL scripts, I would recommend heavily commenting it because हर डेवलपर की अपनी अप्रोच होती है, हर इंजीनियर की अपनी अप्रोच होती है, बट स्क्रिप्ट्स को कमेंट करने का फायदा ना सिर्फ आपको होता है बट इट इज यूजफुल फॉर अदर्स एज वेल बिकॉज इट टेल्स अदर्स what a particular piece of code or script is doing. So do use commenting in your code. It is recommended. Okay. तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं, या आप लोगों के लिए मैंने टेबल अभी डिफाइन नहीं किया हुआ, अगर टेबल को डिफाइन किए बगैर हम उसको उसके ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं, तो जिस तरह से अभी तक आप लोग करते रहे, आपके पास प्री डिफाइंड टेबल रहे होंगे एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स में, आप लोग उसको रन करते रहते थे। लेकिन दिस इज द एरर दैट यू गेट व्हेन यू ट्राई टू क्यूरी अ टेबल दैट इज नॉट इवन क्रिएटेड। इसी तरह से दिस इज द क्यूरी that tells you a basic idea for how the table is to be created. आप create table का keywords यूज करते हैं, साथ में table का name define करते हैं, parentheses open करके जितने attributes होते हैं उनको mention करते हैं, हर attribute की data type define करते हैं,
चाहे वर्ड्स आ रहा है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, whatever it is, n वर्ड्स आ रहा है, डेट टाइम है, और there are other types of data types that can be used. वो सारी चीज़ें जो है आप डिफाइन करते हैं पहले. अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल करेक्टर जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो मैंने 50 किया हुआ है, कि मतलब 50 लेंथ है करेक्टर्स की जो इसके अंदर आ सकते हैं इस ट्रेनी नेम के अंदर. अगर इससे ज़्यादा होंगे तो या तो एंट्री नहीं होगी, या फिर एंट्री अगर हो भी गई तो ट्रंकेटेड एंट्री होगी. ये मैं डिफरेंट आपको उसका बता रहा हूँ, एक जेनेरिक आइडिया दे रहा हूँ एसक्यूएल किस तरह से काम कर रही होती है डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट SQL सर्वर राइट नाउ. ओके, so let's start off by creating this table. तो commands completed successfully, completion time बता रहा है. अगर आप अपने पास यहाँ पे जिस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हैं उसके टेबल्स के अंदर जाके इसको रिविजिट करेंगे, रिफ्रेश करें, तो आपके पास this table should now exist, which is demo table for VVM BI trainees. तो आप लोगों के लिए टेबल बनाया है मैंने, and this here is the table. आप इसको एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फर्दर इनकी चीज़ें आ रही हैं, इनके कॉलम्स कौन से, इस टेबल के कीज क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, इंडेक्सेस क्या हैं, स्टेटिस्टिक्स क्या हैं. अगर इसके कॉलम्स देखें तो आपके पास ट्रेनी नेम आ रहा है और आईडी आ रहा है, और इसके बाद आपको ये भी पता लग रहा है कि नलेबल कॉलम्स हैं. अभी इसके बारे में डिटेल में आगे फर्दर देखते हैं किस तरह से इसके ऑपरेशन चलते हैं. सो टू चेक इफ अ पर्टिकुलर टेबल exists in the database schema, तो वो किस तरह से करेंगे. दिस इज, एक तो आप लोग यहाँ पे लेफ्ट में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके ऑब्जेक्ट्स को सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके पास वो हैं. इट कुड बी, यू कुड से व्हाट objects exist in your database or your schema. Another way to do it is by using a SQL query that I prefer myself, क्योंकि ये आपको ज़्यादा detailed information दे देता है with writing a single piece of script. अगर इसको रन करूँ मैं तो आपको यहाँ पे टेबल कैटलॉग का पता लग रहा है. That is AdventureWorks L3 2019. You get the table schema, that is DBO. You get the table name, you get the column name, you get the position of each column, कि सबसे पहला कॉलम कौन सा था, दूसरा कॉलम कौन सा था. बाकी इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. कॉलम डिफॉल्ट, कोई वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डिफाइन की हुई. नलेबल कॉलम है तो उसका बताया हुआ है कि यस इट इज नलेबल, क्योंकि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ कि नल हो सकता है या नहीं हो सकता. हमने सिंपल टेबल क्रिएट किया तो वो नलेबल है. विदाउट एक्सप्लिसिट, जब तक हम लोग एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं करेंगे कि नल ना हो, तब तक उसके अंदर नल वैल्यूज आएंगी. डेटा टाइप्स उसकी बता रहे हैं कि किस टाइप की डेटा टाइप है. फिर वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम करेक्टर लेंथ क्या हो सकती है, जो कि हमने डिफाइन की थी यहाँ पे 50, तो 50 करेक्टर्स इसके अंदर आ सकती है लेंथ. और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर अदर you could say very great information sources as well. Do explore this query as well. अच्छा जी, उमर भाई, तो डिस्क्राइब और आपकी क्यूरी में क्या फर्क है? डिस्क्राइब के अंदर भी आप you could say the same stuff comes up, but when I'm talking about SQL Server, तो उसके अंदर you could just use this query because you're actually referring to all the columns that are present and their information. It's not just for a particular, you could say ये एक particular table के ऊपर है, but it is on the standards of SQL Server. डिस्क्राइब बहुत कम डेटा निकाल के देता है, सिर्फ कॉलम का नाम वगैरह. यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं. तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ, when you refer to the information schema, I wasn't trying to get into the details because यहाँ पर बहुत सारे new learners हैं. Not trying to call you guys noobs, but क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे new learners हैं, I wanted you guys to explore. Information schema basically आपके पूरे database का schema define कर रहे होते हैं.
कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन स्कीमा. It contains all the metadata for the data. तो डिस्क्राइब के अंदर लिमिटेड कॉलम्स इसीलिए होते हैं, लिमिटेड कॉलम्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन स्कीमा का सारा मेटाडाटा नहीं होता. It's just related to a particular table and those columns are also limited. Coming back to my original scripting demo, अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग टेबल की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मेटाडाटा एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स सी कि अगर मैं अभी इस टेबल को जो हमने क्रिएट किया है इसको क्यूरी करूं तो हमारे पास क्या डेटा आता है. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई डाटा अभी तक है ही नहीं, तो आपके पास एम्प्टी टेबल आ रहा है. देयर इज नथिंग इन दिस टेबल. Now I'm going to be inserting some values manually in this table. So I'm just going to run all these statements and check if all of these statements have been entered in the table. As you can see, all those entries have been entered into the table. अब यहाँ पर आप इस टेबल डेटा को जरा एनालाइज करें. What do you see? There are multiple discrepancies in this table. Having to look at the data at the first glance, what do you think इसके अंदर क्या discrepancy आ रही है आपको, क्या नजर आ रही है? आईडीज के कॉलम में यूनिक नंबर्स नहीं है. 7 दो दफ़ा है, 8 भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है हमारे पास. सो ये प्राइमरी की तो बन नहीं सकेगा फिर, क्योंकि हमारे पास यूनिकनेस का फैक्टर यहाँ पे वो नहीं है. बिल्कुल सही कहा आपने. आईडी का डेटा हमारे पास मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ 7 के लिए हमारे पास रिपीट हो रहा है. और यूनिकनेस के लिए एक ये चीज भी हमने आप लोगों के साथ मैंने क्लैरिफाई की थी आप लोगों को, व्हेन डिफाइनिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड डिफाइनिंग प्राइमरी कीज टू एक्सेस द डेटा पॉइंट्स शुड नॉट हैव अ नल वैल्यू एज वेल. तो इसमें नल वैल्यू भी आ रही है आपके पास. So if we delete some, let's see कि how the delete operation works. फिर इसके ऊपर further जो आपने अभी एनालिसिस किया है इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि इसके ऊपर अगर हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या एरर्स फेस हो सकते हैं और उनको किस तरह से डील किया जा सकता है. तो before that let's have a look at how the delete operation works. delete में और truncate में क्या फर्क होता है आप लोगों को इससे वो भी पता लग जाएगा. When we use the keyword delete, अगर सिर्फ हम लोग डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम टेबल दिस, इतनी स्टेटमेंट को रन करें तो इसके अंदर से सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी. लेकिन डिलीट का कीवर्ड यूज प्रैक्टिकली इसलिए होता है ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो वाली वैल्यूज डिलीट हो जो कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे. तो टारगेटेड वैल्यूज, ओनली दोज वैल्यूज गेट डिलीटेड, नथिंग एल्स. ट्रंकेट का कीवर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि we no longer need all the data in a particular table, but we need the table structure. delete से भी table structure maintain रहता है, लेकिन it is more well suited if you use delete to delete targeted values. Otherwise, if you need to remove all of the values in a table, use this keyword, truncate table this. सिंपली आप इसको रन करेंगे तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, आपका टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, सारे कॉलम्स इसके बने रहेंगे कि कौन कौन सा कॉलम था, बट द डेटा इन दोज कॉलम्स वुड बी एम्प्टी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट. अच्छा जी, तो अब हमने डिलीट कर दी इसके अंदर से दो वैल्यूज 6 और 8 की. एक दफा दोबारा से चेक कर लेते हैं कि did they actually got deleted or not. So those values actually did. यहाँ पे ना 6 है ना 8 है. ओके तो अब हम लोग कोशिश करते हैं इसके ऊपर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की. आप इसका सिंटैक्स देख लें कि किस तरह से मैंने किया हुआ है कि मैंने ऑर्डर किया टेबल को.
प्राइमरी की मैं शुरू में भी डिफाइन कर सकता था। उसका सिंपल सा एक सिंटैक्स है जो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक टेबल है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइमरी की नहीं है और आप उसको चेंजेस करना चाह रहे हो। व्हेनेवर यू वांट टू अप्लाई अ चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यू यूज द कीवर्ड ऑल्टर। आपने क्रिएट कर लिया टेबल, यू फॉरगॉट टू ऐड द प्राइमरी की एंड नाउ you're adding the primary key. So this is how you do it. Order table, table name, add primary key, जिस जो की है उसको डिफाइन कर दिया। When we run it, तो हमारे पास वो एरर क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि cannot define primary key constraint on nullable column in table, क्योंकि हमने ये वैल्यू एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं की थी कि हमारे पास कॉलम्स नल वैल्यूज, कॉलम्स में वैल्यूज नल ना आए। We didn't use the keywords not null explicitly when creating a table, इसलिए हमारा वो कॉलम जो था वो nullable था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइमरी की ऐड नहीं हो सकती। अगर हम इस टेबल को ड्रॉप कर दें और इसको दोबारा से बनाते हैं, we drop the table और हमने उसके ऊपर ये प्राइमरी की का कंस्ट्रक्ट लगा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही इसके ऊपर डिफाइन कर दिया है कि प्राइमरी की यहाँ पर हो। स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया, पहले मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं किया था। I just added the keywords primary key to define which column would be the primary key. अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा स्टेटमेंट को, तो this column would now be the primary key. अब जिस तरह से आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। Let's skip this part. I guess there's been a mistake. Okay. अब यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, मैं थोड़ी सी ऑल्टर्ड है क्योंकि आप देख सकते थे कि लास्ट टाइम हमारे पास 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो I've removed the repetition, but what if I add those repetition here? Let's see कि कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट होती हैं और कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं और कुछ के अंदर एरर्स हमारे पास आए हैं। अब ये वो वाली वैल्यूज होंगी जिनके अंदर या तो हमारे पास रेपिटेशन होगी या फिर हमारे पास नलेबल वैल्यूज होंगी। लेट्स सी। तो एक तो हमारे पास ये नहीं हुई, रो 79 की वो बात कर रहा है। ओके, लाइन 79 है, लेवल 14 वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के इसके ऊपर क्या वायलेशन थी इसकी? कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 7। आपको ये भी बता दिया उसने कि 7 इसकी वैल्यू है। तो ऑलरेडी मैं क्योंकि 7 एंटर कर चुका था, मैं दोबारा से 7 एंटर करने की कोशिश की है, तो इसने ये वाली इस रो को, इस एंट्री को अस्मा 7 इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये एंटर नहीं हो सकता टेबल के अंदर। इसी तरह से प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट था हमारे पास। कंस्ट्रेंट्स आर कंडीशंस दैट हैव टू बी मेट फॉर द डेटा टू बी एंटर्ड और टू एग्जिस्ट इन अ टेबल। इससे आप लोगों को कंस्ट्रेंट्स का वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने जब इसके अंदर नल वैल्यू एंटर करने की कोशिश की, तो वो यहाँ पे कहता है कि column does not allow nulls, insert fails. I hope that much is clear. अगर मैं इसके अंदर से इसको ट्रंकेट कर दूं टेबल को, अभी बल्कि ट्रंकेट करने से पहले लेट्स सेलेक्ट दिस टेबल और एनसी के इसके अंदर हमारे पास कौन सा डेटा है कौन सा नहीं है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, बहुत बेसिक सा डेमो है, लेट्स सी। तो इसके अंदर हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 की रेपिटेशन नहीं आई, अस्मा हमारे पास नहीं आई, हमारे पास नल वैल्यू XYZ भी नहीं आई। अगर इसी टेबल को हम अब करते हैं ट्रंकेट और उसके बाद इसको करते हैं सर्च के, सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा बचता है आफ्टर ट्रंकेटिंग दिस टेबल। अभी ट्रंकेट कर दिया टेबल हमने, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं फॉर नॉट बीइंग यूज्ड अगेन।
अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में जब हमने सिलेक्ट किया तो सारी डेटा वैल्यूज इसके अंदर से खत्म हो चुकी हैं। ट्रंकेट वर्क प्रॉपर्ली, वी कैन गेट रिड ऑफ द स्टेटमेंट्स, और इसमें हम लोग डेटा अपनी मर्जी का एंटर कर देते हैं that satisfies all the constraints that are applied. तो हमारे पास विदाउट एनी एरर सारी वैल्यूज एंटर हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, व्यूज। व्यूज का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि व्यूज किस तरह से फंक्शन करते हैं। व्यूज कैन सिंपली, दे आर जस्ट अ रैपर और अ ब्लूप्रिंट जो कि आपके टेबल, किसी टेबल को रेफरेंस करके उधर से डेटा ला रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इट वुड मेक सेंस टू यू गाइस कि मैं किस तरह से एक व्यू बना रहा हूँ। क्रिएट व्यू, सिंपली मैंने बता दिया कि मैं एक व्यू बना रहा हूँ। व्यू का क्या नाम है, पहले टेबल बना रहा था मैं, तो यहाँ पे उसका नाम था डेमो टेबल फॉर वीवीएम बीआई ट्रेनिंग्स, पेपर वीएम के बीआई ट्रेनिंग्स के लिए डेमो टेबल बनाया था। अब यहाँ पे मैं डेमो व्यू बना रहा हूँ, डेमो व्यू फॉर वीवीएम बीआई ट्रेनिंग्स, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम्स। अब मैंने यहाँ पे व्यू बनाया, क्रिएट व्यू, डेमो व्यू फॉर वीवीएम बीआई ट्रेनिंग्स, एज बेसिकली करके एज का कीवर्ड यूज करके हम लोग एलियस डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक्चुअली इसके अंदर डेटा वैल्यूज आ रही हैं। तो इसके अंदर से हमने क्या किया है, सेलेक्ट आईडी मल्टीप्लाइड बाय 23 एज आईडी फ्रॉम डेमो टेबल फॉर वीवीएम बीआई ट्रेनिंग्स। व्हाट इट डज इज कि हमारे पास जितनी भी आईडीज थी यहाँ पे उनको एक्सेस किया हमने, एक्सेस करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया 23 के साथ और उनको डिस्प्ले कर दिया, कॉलम नेम दे दिया आईडी के तौर पे फ्रॉम दिस टेबल। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस, राइट। हम लोग इसको सिंपली, अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, इस सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट को अगर मैंने रन किया है तो हमारे पास ये वाली इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। अब समथिंग टू नोट इज कि व्यूज के अंदर डेटा नहीं होता, व्यूज सिर्फ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। डाटा आपके इस टेबल के अंदर सेव्ड है। व्हेन यू एक्सेस अ व्यू, तो व्यू क्या करता है, व्यू जो स्टेटमेंट उसके बैकएंड पे लॉजिक लगाई हुई हमने ये वाली, इसको एग्जीक्यूट करके हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। इट डजंट हैव अ फिजिकल स्टोरेज ऑफ इट्स ओन। डेटा स्टोर टेबल्स के अंदर ही होता है, व्यूज सिर्फ उसको एक्सेस करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। तो आई होप दैट इज क्लियर एज वेल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको व्यूज की एक और बात बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग अभी अगर सिंपल सेलेक्ट इस स्टेटमेंट को, आईडीज को एज इट इज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनको हम व्यू बना देते हैं कि एक व्यू हमारे पास हो जिसके अंदर एज इट इज आईडीज हमारे पास विजिबल हो। तो ये बन गया व्यू। अब हम लोग व्यू को एक्सेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ आईडी को सिलेक्ट किया था, किसी और चीज को सिलेक्ट नहीं किया था, आईडीज हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हो गई हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट माइट कंफ्यूज यू, लेकिन ये आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव दैट अपकमिंग कंफ्यूजन ऑफ योर्स। तो व्यूज का मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअली रेफरेंस कर रहे होते हैं किसी भी टेबल को। या प्लीज अपने माइक को ऑफ रखें, रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ इंसर्शन की। आपको मैंने बताया कि व्यूज एक्सेस कर रहे होते हैं टेबल्स को, रेफरेंस कर रहे होते हैं। तो जब बात कर रहा हूँ मैं रेफरेंसिंग की, वो किस तरह से फंक्शन करती है। अगर मैं व्यूज के अंदर ये वाली वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो व्यू की अपनी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये वाली इंसर्शन जो होगी ये एक्चुअली जाके उस टेबल में हो रही होगी जिसको रेफरेंस कर रहा है ये व्यू। आई होप दैट यू गाइस फॉलोड मी। अगर नहीं समझ आ रही तो डोंट वरी, लेट मी शो यू। मैंने आपको कहा था कि व्यू जो है वो एक्चुअली पॉइंट कर रहा है टेबल को, उसको रेफरेंस कर रहा है, वहां से डाटा लेकर आ रहा है। व्यूज के अपने अंदर कोई डाटा नहीं है, वो
किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है डाटा पे, और मॉडल कर रहा है डाटा को, ट्रांसफॉर्म कर रहा है डाटा को, और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डाटा पे, और उसको सिलेक्ट कर रहा है। तो मेन जो डाटा स्टोर्ड है वो आपका टेबल के अंदर है। अब मैं अगर इसको रन करूं इंसर्शन, तो आपकी यहाँ पर इंसर्शन हो गई है। अगर मैं व्यू को एक्सेस करके देखूं कि क्या डेटा की इंसर्शन हुई है, तो आपको नजर आएगी इसके अंदर। आप लास्ट रो देख सकते हैं कि आपको विजिबल है कि 121 की एंट्री हुई है। मैंने 121 ही एंटर किया था। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि अगर मैं टेबल्स को सिलेक्ट करूं, टेबल्स के डेटा को, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक नल एंट्री हुई हुई है और अगेंस्ट द आईडी 121। तो जो एंट्री हमने व्यू के अंदर की थी, दैट entry was actually being made into the table being referenced. I hope that clears up a lot of ambiguities for what is the difference between views and tables. अब मैं इसके अंदर से ये वाली वैल्यू को जरा डिलीट कर देता हूँ, और लेट मी शो यू गाइस अनदर थिंग। अब मैंने व्यू के अंदर से डिलीट किया है, तो यहाँ पर भी आपके पास व्यू के अंदर वो वाली एंट्री अब नहीं नजर आ रही होगी। ये मैंने टेबल को एक्सेस किया, डिलीट मैंने व्यू से किया और टेबल को एक्सेस किया। अब आप देख सकते हैं टेबल के अंदर भी वो वाली एंट्री नहीं है। तो अगर अब मैं यहाँ पे कर दूं, व्यू को दोबारा से क्रिएट करूं, लेकिन विद द एक्सेप्शन कि सेलेक्ट आईडी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 23 के साथ, सो आईडी टाइम्स 23 एज डेमो आईडी। ओके, अब व्यू के अंदर आपके पास डेटा किस तरह से होगा? कॉलम का नेम डेमो आईडी होगा आपके पास। अच्छा, पहले से है, तो लेट्स ड्रॉप दिस व्यू फॉर नाउ। ड्रॉप व्यू, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कॉलम का नाम हमने चेंज कर दिया, हमने डेमो आईडी कर दिया। इस व्यू के अंदर जब भी आप एक्सेस करेंगे अब डेटा को, जो आईडी था टेबल में उस वाले में, इधर यहाँ पे डेमो आईडी के कॉलम से सेव है। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था इसको 23 के साथ, तो 23 के साथ यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज मल्टीप्लाइड नजर आ रही हैं। What would happen if we now try to insert a value here? Let's see. अब यहाँ पे इंसर्शन नहीं हो रही व्यू के अंदर, व्यू के थ्रू टेबल के अंदर। उसकी वजह ये कि आप यहाँ से देख सकते हैं अपडेट और इंसर्ट ऑफ व्यू और फंक्शन, दिस failed because it contains a derived or constant field. तो derived field है जिसकी वजह से इसके अंदर इंसर्शन नहीं हो सकती इस टेबल के अंदर। तो व्यूज का नॉर्मली यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज आल्सो फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। उसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लगाई हुई होती है टू अवॉइड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू द टेबल्स। हम लोग जो यूजर्स को देते हैं एक्सेस, वो व्यूज को एक्सेस करते हैं। We do not normally give out access to the users, end users, direct access of tables. Okay, I hope that is clear to you guys. Lastly, मैं आप लोगों को क्विकली दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने ड्रॉप कर दिया व्यू। अच्छा जी, लास्टली मैं आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था फॉरेन की के कॉन्स्ट्रेंट का, कि किस तरह से फॉरेन की को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लेट्स सी, फॉरेन की होने के लिए जरूरी नहीं कि एक टेबल के अंदर प्राइमरी की हो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहा है भाई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि एक स्टूडेंट का टेबल था, we called it table A. Then there was a department of then there was a table of departments, table B.
अब जरूरी नहीं कि जो टेबल ए स्टूडेंट्स की जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी आ रही है दैट स्टूडेंट बी इनरोल्ड इन अ डिपार्टमेंट और इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। किसी हो सकता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में हो सकता है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में हो ही ना। तो यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसका कोई फॉरेन की के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी उस स्टूडेंट की। तो वहाँ पे उसकी नल वैल्यूज आ रही होंगी या कोई वैल्यू होगी ही नहीं। आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रिटर्न सेट जो आएगा, डेटा सेट जो रिटर्न होगा क्यूरी के अंदर, उसके अंदर नल वैल्यूज होंगी। हमने एक टेबल बनाया था, टेबल डेमो टेबल फॉर VVMBI ट्रेनिंग्स। अब हम लोग एक ऐसा टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हमने मेक श्योर किया है कि फॉरेन की का उसके अंदर एलिमेंट हो। तो वो किस तरह से बनेगा? तो वी डिफाइंड ट्रेनी की प्रोफाइल कि ट्रेनी स्टूडेंट है या ट्रेनी जो है आपका कोई वो है एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और उस ट्रेनी को हमने एक आईडी दे दिया। दैट वाज द फॉरेन की हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और हमने ये डिफाइन कर दिया कि वो रेफरेंस किस चीज को कर रहा है। तो इट रेफरेंसेस दिस टेबल दैट वाज द ओरिजिनल डेमो टेबल फॉर VVMBI ट्रेनीज। और किस चीज को रेफरेंस कर रहा है, कौन से कॉलम को कर रहा है इस टेबल के अंदर से, दैट इज द आईडी। तो लेट मी क्विकली रन दिस एज वेल एंड इट इज सक्सेसफुल। अगर हम इस टेबल को जाके देखें, रिफ्रेश करें यहाँ पे, तो हमारे पास अब ये वाला टेबल आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक और टेबल बन गया है, डेमो टेबल फॉर VVMBI ट्रेनीज, जिसके अंदर एफ के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इसके अंदर फॉरेन की का हमने कॉन्स्ट्रेट बनाया था। इसका नाम भी हमने इसलिए एफ के रखा था, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टेबल्स। अगर इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें, इन टेबल्स को एक्सप्लोर करना चाहें, तो लेट्स सी कि इनके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज चेक करते हैं सिंपली। तो जो BI का हमने सबसे पहला हमारा टेबल था जिसके अंदर सारे BI ट्रेन, लेट्स सपोज कि हमने कुछ एंट्रीज की थी, मैंने BI ट्रेनिंग्स की, उनके ऊपर क्या डिपेंडेंसी आई है। तो यहाँ पे आपके पास अब स्क्रीन पे विजिबल हो जाना चाहिए कि आपका पेरेंट टेबल ये वाला था, डेमो टेबल फॉर VVMBI ट्रेनीज। उसके अंदर डिपेंडेंसी आप किस चीज की आ रही है कि फॉरेन की आ गई है इस वाली टेबल की। अगर यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट्स दैट डिपेंड ऑन डेमो टेबल फॉर VVMBI ट्रेनीज, अभी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दिस टेबल डिपेंड्स, जो हमारा सिलेक्टेड टेबल है, टेबल 1 था, अगर हम ये देखना चाहें कि कौन से ऐसे टेबल्स हैं जिन पर ये टेबल डिपेंड कर रहा है, इस ऑप्शन को अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमें डिपेंडेंसीज और भी नजर आ जाएंगी। If we'll get to know if this table depends on any other table. So it doesn't exist, depend on any other table other than itself. इसी का सिर्फ वैल्यू आ रही है। अगर हम लोग फॉरेन की वाले टेबल को जाके एक्सप्लोर करें, इसकी डिपेंडेंसीज को व्यू करें, तो you guys will see कि objects that depends on this table, दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि फॉरेन की वाले टेबल पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर हम ये चेक करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये वाला टेबल डिपेंड करता है, तो हमारे पास वो वाला टेबल आ जाएगा जिसके अंदर प्राइमरी की डिफाइंड थी, और वो आपको पता लग जाएगा, ये जिस तरह से आपको अब नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कि दिस टेबल डिपेंड्स ऑन दिस टेबल। ये रिलेशनशिप्स बन गए इनके दरमियान। ओके, सो आई होप दैट दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस कि कॉन्स्ट्रेंट्स को हम लोग किस तरह से एनफोर्स करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, चेक करते हैं। दैट वाज अ
introductory, you could say session or a demonstration for how to create tables, create views, how to build dependencies between the tables, create relationships between the tables. ये सारी चीजें आपको मैंने हैंड्स ऑन करके दिखा दी हैं. अब हम लोग आते हैं आपके मेन टास्क पे, because half time is already up. So like I mentioned earlier, today is going to be your assessment. So let's move on to that. मुझे बताइएगा जब मेरी आपके साथ स्क्रीन विजिबल हो तो. 2 minutes. There was some question. I guess if anybody had a question, please let me know. मैंने chat section को नहीं देखा आज सही तरीके से. आपके पास chat में visible नहीं? Okay, let me share it again. So I'm sharing the attendance link again. Okay. Is there any question regarding the session that we just had? कोई query, कोई ambiguity? अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. हम जो व्यू यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि वो फिजिकल मेमोरी शायद नहीं रखते, तो इसका पर्पस क्या है एज कम्पेयर टू सिंपल सिलेक्ट हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, अदर देन दिस कि वो सिक्योरिटी पर्पस जो बाद में आपने बताया था. मैंने आपको बताया it provides security, it provides abstraction. फ्रंट एंड यूजर को नहीं जरूरत ही नहीं है एक चीज को पता होने की बैक एंड पे लॉजिक क्या चल रही है, किस तरह से चल रही है. उसको सिर्फ डाटा से मतलब है. तो यू इम्प्लीमेंट व्यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इन सम वे एंड गिव एक्सेस टू द एंड यूजर, ताकि उसने सिलेक्ट करना है वो सिंपल लिखेगा एंड यूजर. लेट सपोज डाटा एनालिस्ट को नहीं उसको जरूरत ही नहीं है डाटा एनालिस्ट को बताने की कि डाटा बैकएंड के ऊपर किस तरह से सेव है, मॉडल के अंदर किस तरह से सेव्ड है. वो क्या करता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट आती है उसको सिर्फ ये चाहिए कि भाई कितनी सेल्स हुई हैं. तो आपके सेल्स किस तरह से बन रही हैं, आपके कोई भी आइटम सेल होती है तो उसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ों की उसके ऊपर जो होती है अमाउंट जो होती है वो ऐड हो रही होती है. लेट्स सपोज देयर इज आपका जीएसटी टैक्स होता है, आपके स्टोर टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ये सारे टैक्सेस आपके जो है कंबाइन होके एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बना रहे हैं. तो डेटा एनालिस्ट don't have the need to get all of the information for the data, how it is being stored at the back end. He just needs कि price क्या होगी. So what you would do is you would write a SQL statement that would describe कि कौन कौन सी कॉलम्स की वैल्यूज ऐड हो रही है, उसको आप एलियस दे देंगे प्राइस के तौर पे, एंड यू वुड जस्ट टेल द एंड यूजर और द डेटा एनालिस्ट टू पुल अप द डेटा, एंड उसके पास सक्सेसफुली प्राइस की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, मैं ना की डिफरेंस आपको ना इसका बताता हूँ. बेसिकली की डिफरेंस क्या है व्यू और सिलेक्ट के अंदर. सिलेक्ट को अगर आपने याद हो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि सिलेक्ट जो है ना किसी भी स्टेटमेंट के अंदर सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है. सबसे पहले पूरा टेबल कॉल होता है, ठीक है, उसके क्राइटेरिया लगता है फिल्टर का, उसके अंदर जो भी आपने ज्वाइनिंग करनी है ज्वाइन होता है, क्राइटेरिया होता है, फिर उसकी ग्रुपिंग होती है, फिर उसकी समरी की फिल्टरिंग होती है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर ऑर्डर होता है, फिर सिलेक्शन होती है. ठीक है. अब व्यू के अंदर होता ये कि सर्वर जो है ना आपका कोई भी डीबी सर्वर वो पूरा एग्जीक्यूशन प्लान सेव रखता है अपने पास. तो उसको फिर से पूरा एग्जीक्यूशन प्लान बनाने की जरूरत नहीं होती. आप सिंपल व्यू को कॉल करते हैं. ये जो है ना एडवांस टॉपिक्स हैं, जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे हर चीज को, इसलिए मैंने कहा था आपने हर ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है. व्यू का फायदा ये है कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान सारा का सारा सर्वर के पास सेव होता है. उसने हमेशा उसी प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट होना होता है अनटिल आपने व्यू को जो है ना फिर से चेंज नहीं कर दिया या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल चेंज नहीं हो गया. तो ये मेन डिफरेंस है, इसीलिए व्यूज को इस्तेमाल किया जाता है. इसका एग्जीक्यूशन पहले प्लान सारा सर्वर के पास पड़ा होता है. बाकी जो बातें उमर ने की हैं दैट स्टैंड्स वैलिड. जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसका ये है कि आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान रेडी होता है, आप जस्ट कॉल करते हो, आपको सिर्फ वही कॉलम्स का रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाता है जो आप कहीं पे भी यूज कर रहे होते हैं.
You can continue, Umar. Okay, sir. Thank you so much. जिस तरह से अदीब भाई ने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया है वो दैट इज आल्सो you could say the primary aspect for having views. मैंने लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों से एग्जीक्यूशन क्यूरी की एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी और साथ के साथ मैंने आप लोगों से जो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टोर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस एंड आई टोल्ड यू गाइस टू लुक इट अप. The main purpose was also to give you guys an idea for how the DB actually comes up with an execution plan. That led to one thing, and that one thing led to another thing, और वो बीच में execution plan वाली बात वहीं की वहीं रह गई. So I would suggest you and recommend you guys to go through how the the database comes up with the most efficient execution plan for a query. जब भी आप कोई query लिखते हैं, there are multiple ways to execute it for it to execute. So what DB does is you could say it uses some metrics, it uses some techniques to uh, come to the conclusion कि सबसे optimized way कौन सा होगा to access the data from the database. उसके ऊपर further हम लोग query को optimize करते हैं किस तरह से करते हैं that and to know how to write an optimized query. We then further you could say we first have to know what is the order of execution of a query. तो हम लोग last session में वो चीज discuss करते रह गए थे. To go through all these things as well. So जिस तरह से मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था ऑलरेडी हमारे पास अब टाइम हाफ टाइम हो चुका है थोड़ा सा बल्कि ऊपर ही हो गया है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड with your assessment. I hope my screen is being shared with you. So मैंने आप लोगों को जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी दे दिया कंस्ट्रेंट्स का भी दे दिया ये भी बता दिया रिलेशनशिप्स किस तरह से बनते हैं वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ टू बिल्ड ERDs. Now to put those things in action, I'm going to give you a scenario. आप लोगों ने क्या करना होगा? You could use your different tools. Online tools आप use कर सकते हैं अगर आपको कोई free मिलता है तो but I would rather recommend you guys to use a pen and paper. आप pen and paper के ऊपर ही simple अपना ERD draw करें कीजिएगा मैं आपको requirements share करूँगा आप लोग पेन एंड पेपर के ऊपर जो है पेन से पेपर के ऊपर ERD डायग्राम बनाएंगे एंड ऑल ऑफ यू शेयर योर ERDs ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज उसके ऊपर देख के मुझे पता होगा कि आप लोगों ने बनाई है खुद से बनाई है और उसको फिर देख के हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट हम लोग रैंडमली उसके अंदर से पिक आउट करेंगे ERDs एंड विल डिस्कस इट व्हाट शुड बी what should have been the ERD उसके अंदर किस तरह से किस चीज की कमी है या फिर क्या चीज उसके अंदर सही है क्या चीज अच्छी है सारी चीजों को देखेंगे फिर उस ERD को आप लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे सो इट्स अ 2 phase स्टेप आप लोगों को पहले मैं ERD की रिक्वायरमेंट्स दूंगा आप लोग ERD बनाएंगे एंड you guys will dive directly into implementing that ERD डिस्कशन हम लोग एंड में करते हैं so let's start. This is the scenario. Please note कि आपके पास जो टाइम आपका मैंने अलॉट किया है इस सारे प्रोसेस के लिए that is no more than you could say 30 minutes. 30 minutes would be more than enough. Last 10 minutes के अंदर हम लोग डिस्कशन रखेंगे अपनी कि what should be the correct solution to this scenario.
कैश दिखा ओ कैश दिखा देखे जरा कॉल है Excuse me. Hello. हेलो, हाँ जी। Sir, I am done with Hello. ER diagram. Hello. You're done with EID diagram? Yes, sir. Okay. आप ऐसा करें कि यहाँ पे कमेंट के अंदर उसके किस तरह भेजेंगे कमेंट में? Let me check. आप ऐसा करें, उस पे पहले पेपर पे नाम लिखें और तस्वीर लेके कमेंट में अंदर भेज दें Okay. sir. ताकि उसको चेक किया सर जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो व्हाट्सएप पे भेज दें। दैट्स गुड। व्हाट्सएप में भेज दो ठीक है ओके
I would just like to point out that there are only 10 minutes remaining. So start to finish up with your ERD diagrams and start with the implementation process as soon as possible. एक्सक्यूज मी सर, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है फिलहाल हम किसी ऑनलाइन टूल पे कर सकते हैं? The reason for the whole course was to give you guys hands-on experience on SQL Server. Preferable यही है कि आप लोग implementation मुझे सारी जो करके दिखाएं वो आप लोग SQL Server के ऊपर करके दिखाएं. But in case अगर आपके पास नहीं है SQL Server, आपकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल नहीं है, so you can use other tools, other online sources, but I would highly recommend using SQL Server as your primary database. ठीक है सर, फिर मैं ये कि मैं आपको थोड़ी देर तक डाउनलोड करके उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके आपको भेज दूंगी. आप अभी फिलहाल ऑनलाइन कर लीजिए, मैंने ठीक है. recommended का है. ठीक है सर, थैंक यू. Umar, are you there? Yes, I'm here. Question is, ये SQL सर्वर डाउनलोड किया था, उसमें मल्टीपल चीजें डाउनलोड की हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में करना है या स्टूडियो सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हमने करना होता है ये? देखें, आपका SSMS जो है मैनेजमेंट स्टूडियो, दैट इज एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आप उसके अंदर स्क्रिप्टिंग करते हैं जितनी भी करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो होता है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशंस. Okay, so management studio. Okay, thank you.
The time is almost up. I'm just going to give you guys a minute or so to wind up your scripting. And then we'll start with discussing different possible solutions for how to implement the ERD, then convert it into the relational model and implement that relational model on the database. Okay, I think उमर एक ना जनरल डिस्कशन रखे हैं इनके साथ, इन्होंने एंटिटीज किस तरह आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है? जी बिल्कुल. So Adil bhai, I'll be talking about how to identify entities, what were the relationships, एक generic सा idea देना है, फिर मैं strategy discuss करूँगा, what should be their approach to how to convert that ERD into a relational model और उस relational model को implement किस तरह से किया जा सके. एग्जैक्टली मैं भी देखना चाहता हूँ ये बच्चे जो है ना किस तरह सोच रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल में किस तरह सोच रहे हैं. ठीक है, लेट्स हैव डिस्कशन. Okay, sure thing. So the time is up. Let me share my screen real quickly. Let me know if you can see my screen. क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. Can you see the WhatsApp image?
यस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मशाल ने शेयर किया था, मशाल ज़िया। मशाल ज़िया, वुड यू प्लीज केयर टू एलाबोरेट कि आपने किस तरह से एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वाज गिवन। आप रिलेट करें कि आपने किस तरह से ब्रेक डाउन किया था रिक्वायरमेंट्स को, जस्ट अ क्विक इनसाइट। सर इसमें ये था कि पाकिस्तान ये आपकी वॉलीबॉल टीम है, ठीक है, इसमें एक पाकिस्तान वॉलीबॉल जिसके अंदर डिफरेंट टीम्स हैं, तो मैंने टीम को एंटिटी ले लिया था और उसके अंदर मैंने जो है ना डिफरेंट वो बना दिए थे इसके एंटिटीज बना दी थी, जैसे सेट ऑफ प्लेयर्स, सिटी और इस तरह। आपने टीम को एज एन एंटिटी कंसिडर किया था, उसके बाद आपने एंटिटी के अंदर फर्दर एंटिटीज बनाई थी। फर्दर एट्रीब्यूट्स बनाए थे। ओके, ठीक है। ठीक है, और फिर एक टीम की बनाई थी एंटिटी, एक प्लेयर्स की बनाई थी, एक मैच की बनाई थी। ठीक, 3 एंटिटीज बना दी थी, फिर उनके आगे एट्रीब्यूट्स बनाए थे प्लेयर्स की, कि प्लेयर्स में उसके क्या स्किल सेट हैं और उसका क्या रिकॉर्ड है, इंजरी रिकॉर्ड और उसका नाम एंड एटसेट्रा और उसकी पोजीशन। ठीक है, और मैच में ये था कि डेट और स्कोर। फिर इनको जो है इनका रिलेशनशिप बनाया था टीम और प्लेयर का, कि वो आपस में बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो प्लेयर है वो किसी टीम का मेंबर है। ठीक है, जो प्लेयर जो टीम कैप्टन है। सही। और एक होस्ट और एक गेस्ट थे जो कि वो मैच प्ले करे थे और उनका एक सर्टेन स्कोर था। मुझे इतना ही समझ आया था। तो आपने यहाँ पे वीक एंटिटीज, वीक रिलेशनशिप्स किस तरह से बनाए हैं कि होस्ट को आपने वीक रिलेशनशिप किस तरह से कंसिडर किया? नहीं, ये मैंने सिंपल कंसिडर किया कि जहां पे वो लिखा हुआ था ना कि वो हैं आपके पास, 2 टीम्स हैं जिनका आपस में मैच और उनका ये सर्टेन स्कोर है, तो मैंने एक को कंसिडर कर लिया था कि एक होस्ट है और एक गेस्ट है। उसके लिए आपको यहाँ पे डबल, जब आपने इसको किया है आउटलाइन, जी जी, डबल डायमंड्स आपने रिप्रेजेंट किया है, दैट मींस दैट इज अ वीक रिलेशनशिप। वो मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किया था। ओके, तो नॉर्मली जब भी हम लोग ERDs की बात करते हैं, व्हेन वी use double linings, that means that it is either a weak attribute, either a weak entity or a weak relationship. ठीक, ओके, तो यहाँ पर मैच को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाएगा कि मैच की कोई यूनिकनेस को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? आपने मैच का स्कोर दे दिया, मैच का डेट दे दिया, तो आपने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इसके अंदर हाउ वुड यू आइडेंटिफाई that which two teams were having a match if you considered match a separate entity? ये कोई मुझे एक नहीं। यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए था ना, जिसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई ये होना चाहिए था आई गेस कि कोई टीम नंबर होना चाहिए था। इधर टीम्स की आईडीज होनी चाहिए थी और मैच जी, की अपनी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए थी, ताकि हमें ये पता होता है कि होस्ट टीम की जो किस, रिलेशनशिप यहाँ पर आ रहा है, तो होस्ट हाँ टीम के अंदर की कौन सी ऐसी एंटिटी आ रही है जो कि उसको डिफाइन कर रही है कि होस्ट टीम है, गेस्ट टीम है जिनके दरमियान मैच हो रहा है, और साथ में इसके एक यूनिक आईडी होनी चाहिए थी मैच की, जिसके थ्रू द मैच इटसेल्फ वुड हैव बीन आइडेंटिफाइड यूनिकली। तो आपने इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन किया है, कुड यू क्विकली शो अस योर स्क्रीन एज टू हाउ यू इम्प्लीमेंटेड दिस मॉडल इन द SQL सर्वर? नहीं सर, मेरा भी इंटरनेट नहीं सही वो चल रहा था, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था वो। ओके, तो फिर लेट्स मूव ऑन। किसी और रैंडमली ERD को हम पकड़ते हैं। अच्छा, बाय द वे मशाल, इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट आपके पास ये भी थी दैट यू हैव टू डिस्क्राइब the relationship, the cardinality between the entities, whether it was a ये one मैं to आपको one, ये मैं आपको one to दोबारा many. से करके कर देती हूँ। तो जिन लोगों ने भी इसके अंदर अगर नहीं किए डिफाइन, तो you definitely that is something to be considerate about in the next time. You always have to consider the cardinality. कि
किस टाइप के relationships हैं? Is it one to one? Is it one to many? Is it many to one? Or is it many to many? अच्छा, this is the ERD from Abdul Manan. Okay. So Abdul Manan, can you please describe what your approach was for this ER model? Actually, इसमें मैं while implementing on SQL Server, I came to know that I missed some IDs. तो उसमें वो मैंने मिस कर दी हैं. बाकी ये कि इसमें तीन एक्चुअली 4 एंटिटीज होंगी. इसमें टीम, मैच और इंजरी रैकेट और प्लेयर होंगे. इसमें टीम की भी एक यूनिक टीम आईडी होगी. चलिए ठीक है. If you already know that this ERD is flawed, so let's move on to the next one. Because आपको definitely self identification बंदा बाद में ही कर सकता है जब उसको आइडिया हो जाता है किसी एक डिस्कशन के बाद कि what are the things that are lacking. So let me just select a random one from here. Okay, this one. So this one is from Abdullah Malik. Abdullah Malik, आप on site हैं या फिर आप online हैं? अच्छा, on site हैं. Okay. तो अब्दुल्ला, आप काइंडली इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करते हैं. अपना आप माइक मुझे म्यूट रखिएगा, आपकी आवाज़ इसमें आ जाएगी. आप बस बोलिएगा. आप फर्स्टली मैंने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था. जो एंटिटीज़ मुझे मेरे सामने आई थी उनमें टीम थी, प्लेयर्स थे और गेम थे. टीम के अंदर मैंने उसके फर्दर एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जिसमें नेम, टीम आईडी, प्लेयर, कैप्टन और कोच है. इसके अंदर मैंने प्राइमरी की जो सेट की है वो है टीम आईडी. इसमें आप नेक्स्ट उसमें मूव करेंगे. मैंने इसकी ईआरडी को टेबल की फॉर्म में वो किया हुआ है. उसमें इसकी डेटा टाइप को भी मेंशन किया हुआ है और उनके रिलेशन जो हैं. Are you talking about this? यस. Okay. इसमें टीम आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट किया हुआ है मैंने. और उसके बाद जो प्लेयर्स है, प्लेयर्स के एट्रीब्यूट में प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, पोजीशन, स्किल लेवल एंड सेट ऑफ इंजरी है. उसके बाद गेम आ जाता है. एंटिटी गेम, एंटिटी के अंदर जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो गेम आईडी, गेम टाइप और डेट और स्कोर है. जो इन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की सेट की है. प्लेयर्स के अंदर प्लेयर आईडी की भी है. नेम जो है वो सेम हो सकता है प्लेयर्स का, लेकिन प्लेयर आईडी जो है वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी कि ये प्लेयर कौन सा है. उसके बाद गेम है. गेम के अंदर भी गेम आईडी जो है उसको वो किया हुआ है, प्राइमरी की सेट किया हुआ है. अब टीम के अंदर आते हैं. टीम के अंदर वो रिक्वायरमेंट के अंदर था कि हर प्लेयर जो है वो एक टीम का पार्ट होगा. तो प्लेयर आईडी टीम्स के अंदर आ रही है एज अ फॉरेन की, जो प्लेयर में प्राइमरी की थी. और हर प्लेयर जो है वो एक गेम खेलेगा तो जो गेम आईडी थी वो टीम्स के अंदर फॉरेन की को रिप्रेजेंट करेगी. आप मुझे इसके अंदर ये बताइए कि आपने यहाँ पे जो इसको सेट, ये आपने ये जो रिलेशनल मॉडल बनाया है. सो बाय द वे एवरीबॉडी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ईआरडी मॉडल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशनल मॉडल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल मॉडल. तो जो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज मोर ऑफ अ फिजिकल मॉडल. अब फिजिकल मॉडल ये किस तरह से है, ये आप लोगों को मैंने पहले उसके अंदर बताया हुआ है. फिजिकल मॉडल के अंदर डिफाइन किया जाता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स की कौन सी टाइप्स होंगी और किस तरह से होगा. इन्होंने ऑल्दो ही हैव लेफ्ट आउट सम ऑफ द फील्ड्स, आई थिंक दे आर रिडंडेंट फील्ड्स, जिसकी वजह से इन्होंने किया हुआ है कोच को वार्चर किया हुआ है, कैप्टन को वार्चर किया हुआ है. तो दिस इज मोर ऑफ अ फिजिकल मॉडल. लेकिन मैं आपसे अब्दुल्ला, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किए हुए रिलेशनशिप्स आपस में, इनकी कार्डिनलिटी किस तरह से डिफाइन की हुई है. बिकॉज अगर आप इसको देखें इस मॉडल को, कि टीम्स के दरमियान जब भी मैच होगा तो वो आपने गेम से रिप्रेजेंट किया, राइट? टीम्स के बीच में जब भी मैच होगा वो गेम से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो गेम्स और टीम्स का आपस में रिलेशनशिप कहाँ पर नजर आ रहा है? यहाँ पर तो मुझे प्लेयर्स का और गेम का नजर आ रहा है, और मुझे टीम का प्लेयर्स के साथ नजर आ रहा है कि एक टीम के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं. वो इसमें टीम्स के अंदर आप देखेंगे गेम आईडी को मैंने फॉरेन की के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है टीम्स के टेबल के अंदर. तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी टीम को उसके साथ रिलेट किया हुआ है टीम के साथ. ओके,
बट यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे विजुअली इनके बीच में नजर क्यों नहीं आ रहा? देयर इज जब तक वो देखें जो मॉडल होता है, जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं, दैट डिपिक्ट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे गेम का और टीम का रिलेशनशिप मुझे एज सच नजर नहीं आ रहा। आपने फॉरेन की के थ्रू डेफिनेटली बेशक इसके अंदर आपने कहा है कि उसको जस्टिफाई करने का आपने कहा है कि आपने किया है, बट व्हाट इज द रिलेशनशिप? यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 1 to 1 है, 1 to many है, many-to-many है? क्या है यहाँ पे इसकी गेम और टीम के दरमियान का? आप मुझे रिलेशनशिप डिस्क्राइब करें अगर। गेम और टीम के दरमियान 1 to 1. One team can play one match. Multiple teams can play One one team. match. Two teams. 2 teams एक गेम के लिए। दो टीम से खेलते हैं गेम। हाँ। तो यहाँ पे तो मुझे जो रिलेशनशिप नजर आ रहा है दैट इज many-to-many रिलेशनशिप, कि many teams can play many games. That is a very big flaw. That is actually the thing जो कि आपको अदील भाई पहले जो सेशन से कहते आ रहे हैं कि many-to-many relationship that cannot exist on a physical model. How to deal with such situations? You build up a junction table. इसके अंदर आप ये कर सकते थे कि टीम्स का बताते थे कि कौन सी टीम्स का आपस में मैच हो रहा है, and you could break that down into a many-to-one relationship rather than having a many-to-many relationship. I hope this makes sense to everybody. Okay. But a good effort. Lekin it still needs a lot of improvement. Talking about another random diagram, तो ये नुमैर सगीर है यहाँ पे। ओके, नुमैर का तो यहाँ पे ऑन साइट है मेरे साथ। तो नुमैर जरा एक्सप्लेन करते हैं कि आपने किस तरह से इनको इंटरप्रेट किया था रिक्वायरमेंट्स को। एक्चुअली टीम्स एक जो एंटिटीज मैंने फाइंड की वो टीम्स की थी, एक प्लेयर्स की थी। उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे वो नेम था, कोच, और उसके एट्रीब्यूट्स थे कुछ, और ऐसे ही प्लेयर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स थे। देन जो प्लेयर्स और टीम का रिलेशनशिप जो फाइंड किया था मैंने 1 to many का था, मींस वन प्लेयर बिलोंग्स टू वन टीम, और उसके बाद कैप्टन्स के साथ था कि एक टीम में सिर्फ एक कैप्टन होगा, और वन टीम हैज प्लेयर्स में था। देन एक वीक एंटिटी इंजरी की थी, इसमें उसकी इंजरी की से आईडी और उसकी डिस्क्रिप्शन थी। देन एक गेम, मतलब एक टीम जो है वो प्ले करेगी गेम, उसकी डेट और स्कोर है, मतलब 2 टीम्स के दरमियान एक गेम। एक गेम में ना पार्ट जरूरत है गेम का। तो मेरा भी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चंस अभी हम लोग करते हैं। लेट मी जस्ट गेट टू नो व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाट वाज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल दैट ही बिल्ड अप। अच्छा, तो आपको यहाँ पे गेम के अंदर अपना लग रहा है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन थी, तो व्हाट वाज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन मींस की जो होस्ट टीम है और गेस्ट टीम है, उनका रिलेशन गेम्स के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि टीम्स, और मतलब गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे देखें, मुझे जो नजर आ रही है चीज, यू डेवलप्ड अ रिलेशनशिप, आपने गेम को रिलेशनशिप बनाया और आपने उनको एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ा हुआ है rather than having them connected to an entity. Attributes cannot exist on their own, they must have to have an entity. ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये एक मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है कि अगर मैं साइड इस वाले पोर्शन के ऊपर जूम इन करूं कि गेम्स को एंटिटी कंसीडर करें, कि आप यहाँ पे गेम को या मैच को एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कंसीडर कर सकते हो, और उस एंटिटी के ऊपर जिस तरह से मैंने अभी अब्दुल्ला के मॉडल की एग्जांपल दे रहा था, दैट वाज अ प्रीटी गुड डिपिक्शन फॉर हाउ द मॉडल शुड बी। उसके ऊपर आप जंक्शन टेबल बनाते where you could have defined कि कौन कौन सी टीम्स किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है, कौन कौन से उन्होंने मैचेस खेले। There could have been a column
where you could have selected instead of saying host team or guest team, or you could have used these exact same keywords to define these attributes. उस मैच के अंदर एक होस्ट टीम का कॉलम बन जाता, एक गेस्ट टीम का बन जाता, डेट हो जाता, स्कोर हो जाता। गेम की एंटिटी के अंदर ये 4 कॉलम होते हैं, मतलब बिल्कुल डेट, स्कोर, बिल्कुल बिल्कुल होस्ट टीम और absolutely, that could have been something that would have been an appropriate solution. मैनी टू मैनी रिलेशन को काउंटर करने के लिए जो जंक्शन टेबल होगा वो हमारा गेम का होगा। Yes, that could have been the game day. रिलेशनशिप डॉट नहीं बनाएंगे वन टू मैनी में, तो नहीं तो मेरे आप साइड इसको पे जो आपकी फॉरेन की होनी नहीं तो चाहिए। इसको आवाज आ रही है आप लोगों को? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं भाई कि यहाँ पे एक जो चीज मुझे मिस लग रही है वो शायद टूर्नामेंट है। कोई टूर्नामेंट के दरमियान में गेम मैचेस को आप जो है रिजॉल्व करके टीम्स के साथ मिला दो, तो आप यूं क्यों नहीं सोचते? ठीक है, कोई ना कोई टूर्नामेंट के अंदर ही मैच हो रहा होगा ना, तो कुछ अदील ऐसा भाई, भी बन सकता लेट था। मी लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। मे बी यू कैन बेटर गाइड देम फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन जब विजिबल हो आपके साथ। बिल्कुल कैन यू सी माय स्क्रीन? बिल्कुल। ओके, सो अब दीज वर द देखो रिक्वायरमेंट्स। आप लोग हाँ मैंने पढ़ ली है, ठीक, मुझे समझ आ रही है। PVT has many teams, ठीक है। Have team names, players in these games। अच्छा, फिर आगे कैप्टन आ गया, फिर आगे आपकी गेम। अब आपकी गेम खेली जा। अच्छा, फिर आपके आगे 2 टीम्स आ गई और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यार इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना आप ये देखो, ये आपका जो आप रियल कोई प्रॉब्लम देखो। आप सारे क्रिकेट का टूर्नामेंट देखते हो, आप सारे क्रिकेट का मैच देखते हो, बिल्कुल ठीक है ठीक है। क्रिकेट का जब मैच देखते हो तो आप देखते हो कि उसका एक कैलेंडर होता है, उसका पूरा स्केड्यूल होता है, ठीक है। आप उस बिल्कुल स्केड्यूल को अगर गौर से देखोगे तो वो आपका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जहां से आपने अपने पूरे बिजनेस को जो है ना वहां से एंटिटीज जो है ना एक्सप्लोर करनी शुरू करनी है। ये सिमिलर वही मॉडल है, ठीक है। एब्सोल्युटली आप अगर किसी स्केड्यूल को देखो तो उसके अंदर क्या होती है, 2 टीम्स होती हैं जो आपस में खेल रही होती हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर वो टूर्नामेंट है तो मल्टीपल टीम्स है, ठीक है। अभी हम मैं स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। एट अ टाइम कोई एक ही टीम खेल रही होगी उस स्केड्यूल के अंदर। अगर मैं उसको देखूं उस स्केड्यूल के अंदर देखूं तो क्या क्या है। एक टीम, वन टीम ए वर्सेस बी, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। टाइम टाइम मतलब डेट क्या है। अब देखो क्या 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 चीजें निकल रही हैं। एक तो वो पूरा स्केड्यूलर इटसेल्फ, ठीक है। बिल्कुल फिर उसके अंदर टीम, फिर उसके अंदर कैलेंडर, फिर उसके अंदर वेन्यू। अब मैं टीम के अंदर आ जाता हूँ। इसी एंटिटी के अंदर एक है टीम। टीम के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? टीम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं प्लेयर्स, ठीक है। उन प्लेयर्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेयर है जो कि आपका है कैप्टन, ठीक है। और फिर हमारे बिल्कुल पास ये एक वीक एंटिटी के साथ लिंक होगा जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि इस टीम के इतने प्लेयर जो है ना इंजर्ड हैं, तो इंजरी का टेबल आ जाएगा, वीक एंटिटी एक और आ गई। बिल्कुल आपको सोचना है कि मैंने अपने पूरे बिजनेस को अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देखूं तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका वो स्केड्यूलर जो आपके सामने पड़ा हुआ है कि भाई टीमों ने आपस में लड़ना, यानी कि मैचेस किस तरह होने। तो आप एब्सोल्युटली उस अगर आप उसको अगर उसको आप तोड़ना शुरू करोगे आपको एंटिटीज मिलने लग जाएंगी उसके अंदर से। यही सारे बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर आपने करना है। आप सिंपल से आखिर में तो आके आपने तो आपस में टूर्नामेंट ही नहीं कराना है ना, मैचेस ही कराने हैं ना। मैचेस किसी टूर्नामेंट में पड़े हैं, ठीक है ना। मैच किसी एक वेन्यू में हो रहा है, मैच किसी एक कैलेंडर डेट पे हो रहा है, मैच
वो कौन खेल रहे हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्लेयर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं, अच्छा कुछ इंजर्ड है, अब ये सारी एंटिटीज हैं, इनको लिख लो एक साइड पे, तो फिर उसके दरमियान रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो कौन सी एंटिटी किस एंटिटी को कंपोज कर रही है, अगर वो कंपोज कर रही है तो इसका मतलब है वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गया। अब इसके अंदर एक और मैनी टू मैनी का आता है, मैचेस का टीम्स के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाता है। किस तरह, किसी टूर्नामेंट के साथ रिजॉल्व कर लो उसे, किसी वेन्यू के साथ रिजॉल्व कर लो उसे, तो ये यूं बनेगा सारा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी था आप सबसे पहले वो उन सारी चीजों को लिस्ट डाउन करें जो एंटिटीज हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपने क्या करना था, सारी एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी थी। राइट साइड के ऊपर आपने वो मॉडल बनाना था जिसमें बताना था ये एंटिटीज आपस में क्या कार्डिनलिटी रखती हैं, क्या रिलेशनशिप बना रही हैं। फिर उस लॉजिकल मॉडल को फिजिकल मॉडल में लेके जाना था जो मेरे ख्याल अब्दुल्ला ने बनाया हुआ था। तो अब्दुल्ला का मॉडल भी ठीक था, नुमैर का मॉडल भी कहीं ठीक था, लेकिन नुमैर के कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है अभी तक ठीक नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा कि एंटिटी किसको बनाना है और रिलेशनशिप किसे बनाना है। बिल्कुल Got ऐसे it? ही। बिल्कुल सही आपने अदील भाई इसकी डिपिक्शन दी। दैट वाज एक्चुअली द सॉल्यूशन। आई वाज गोइंग टू लेट एवरीबॉडी नो कि जो आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मॉडल को डिफाइन करने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू is identify entities, note them down separately. The next step is to identify the relationships and note them down separately. Once you've identified कि कौन-कौन सी entities हैं, उनके बीच में कौन-कौन से relationships हैं, then start thinking for the bigger picture कि किस तरह से आपका data flow करेगा। आप data flow को जहन में रखते हुए जो सबसे पहले चीज आपके जहन में आए उसके हिसाब से उस एंटिटी को जो है आप पिक आउट करके उसके ऊपर मॉडलिंग करना स्टार्ट करें। दैट इज द अप्रोप्रिएट वे टू हाउ टू बिल्ड अप a model, a logical model for the database. And this is also a high level entity relationship model. This is not a logical model. Again, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। Now that we've discussed what the solution should have been, so let me share my screen again. I'm going to show you guys something really interesting real quickly. So I hope my screen is being shared, right? आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes. जी जी नजर आ रही है। Okay. So यहाँ पे just read it out with me अपने in your heads. आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा. Everything would fall into place. Everything would make sense. EM model, when conceptualized into diagrams, gives a good overview of entity relationships, which is easier to understand, and they can be mapped into a relational schema. It is possible to create relational schema using ER diagram. इनमें difference क्या होता है? आपकी entities ERD आपका इस तरह से बन गया, ठीक है? it doesn't really show or explicitly mention what the cardinality is. It just shows the relationships and the connectivity between entities and their attributes and other entities and their relationships. A relational model actually shows the cardinality. It shows जो आपकी requirement थी कि आपने ER diagram ऐसी बनानी है with the cardinality. That was sort of a hybrid approach. उनको आपने once you get an idea कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें होंगी in your relational model that are identified as primary keys, primary attributes that that can uniquely identify all the rows, all the rows of a particular entity, all the attributes of a particular entity, then it starts turning into a logical model. जब आपके पास logical model आ गया, तो what you have to do is identify each and every single one of the attributes कि उनकी क्या data type होनी चाहिए थी. What data type should they have?
और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप उनको जो है डिफाइन करना शुरू कर देते फिजिकल मॉडल को। तो व्हेन मैपिंग एंटिटीज, व्हाट शुड हैव बीन द मैपिंग प्रोसेस? आपके पास लेट्स सपोज एक स्टूडेंट एंटिटी थी, तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए था? यू शुड हैव क्रिएटेड अ टेबल फॉर ईच एंटिटी. Entities attributes should become fields of tables with their respective data types. और उसके अंदर आपने उसकी प्राइमरी कीज और रिलेशनशिप्स कंस्ट्रेंट्स आपने बेसिकली बनाने शुरू करने थे, जिस तरह से मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स आज बनाकर दिखाए हैं कि व्हाट शुड द कंस्ट्रेंट्स हैव बीन. द नेक्स्ट स्टेप इज मैपिंग रिलेशनशिप्स. आप लोगों ने रिलेशनशिप्स के लिए टेबल बनाने थे और उन टेबल के लिए आपने जितनी भी प्राइमरी कीज थी of all participating entities, उनको मैप कर देना था with their respective data types. If relationship has any attribute, add each attribute as field of table. Declare a primary key composing all the primary keys of participating entries and declare all foreign key constraints. That is how you map relationships in an ERD diagram. जब वीक एंटिटीज की बात कर रहे हैं उनको किस तरह से करेंगे आप? जिस तरह से इन माय ओपिनियन जो हमारा अभी यूज केस था, इसके अंदर इंजरी का जो था एक पर्टिकुलर यूज केस, दैट वाज टू मी अ वीक एंटिटी. इट कुड बी कंसिडर्ड अ वीक एंटिटी बिकॉज इंजरी के अंदर दे कुड बी डिफाइंड the, you could say that was derivative of the entity that was teams, कि हर टीम मेंबर के अंदर से एक ये चीज निकल रही थी, एक कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इंजर्ड थे. इट कुड बी कंसिडर्ड अ वीक एंटिटी एज वेल. और उसके अपने एट्रीब्यूट से कि क्या कौन सी इंजरी थी और कौन सा वो था टीम मेंबर की आईडी थी, व्हाटएवर इट वाज, उसको आप किस तरह से मैप करते हैं? Create table for a weak entity set, all its attributes to table as field, add the primary key of identifying entity set, declare all foreign key constraints. That should have been your approach for mapping weak entity sets. Moving on. अच्छा, यहाँ पे I'm not going to dive into this particular area because we haven't talked about it right now. And it somehow is beyond the scope of this training right now. Abhi ke liye, I hope the things that I've mentioned, they make sense to you. I'm going to share this link. Go through all these topics as well, जो कि यहाँ पे आपको site पे mentioned है. Because they actually give you quite a good idea for how the database can be, expressed on different levels. What are the different levels and how to, define the architecture and modeling of a database. So I hope you enjoyed this session. I hope this was a productive session for you. अगर किसी का कोई सवाल है, so now is the time. आपको quickly say there's only 5 minutes left. And then we'll just, इसके अंदर I would suggest कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो फिर से जाएं इस यार ये ना आप व्हाट्सएप के ऊपर ना इसको पेस्ट कर दें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिर से, ठीक है? और आप फिर से ये लिंक भी शेयर कर दें और वो जो है ना आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी वो भी लिंक शेयर कर दें. आप फिर से देखें उसको और फिर से देखें, जो बनाता जाएगा वो फिर से शेयर करता जाए. फिर हम लोग क्या करेंगे अगले सेशन के अंदर ये इसको फिर से डिस्कस करेंगे. कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इसको फिजिकल मॉडल बनाना है, आपने कम से कम टेबल क्रिएट करने हैं जरूर, आपस में उनका रिलेशनशिप बनाना है. वहां पे आप जाएंगे SQL सर्वर के अंदर क्रिएट डायग्राम आ रहा होता है, उसके थ्रू क्रिएट डायग्राम करें इसको. तो आप इसको करें और देखें. हाँ, आपको क्वेश्चन है तो जवाब देना. Absolutely. Let me share my screen again. मैं अपनी पूरी विंडो ही कर देता हूँ इस दफा. For the ease, let me just open this.
VM. और इसमें अभी आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। शुरू में कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होनी चाहिए। So what Adil bhai was actually talking about कि यहाँ पे when you made the tables, when you've described and defined your entities, relationships, and their constraints for the primary keys and foreign keys, you can get into this particular object that is database diagrams, and then you can map particular entities, how they're related to each other. तो वो आपको एक relational model दिखा के बना के दिखा सकते हैं कि किस तरह से बनता है. राइट So क्लिक do करें इसको, practice for it. Uh, राइट Adil bhai, this is actually running on a VM instance, so it does not अच्छा भाई, support इतना properly. ही दिखाना, इतना ही दिखाना बस। ये देखिए यहाँ पे Okay. लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डेटाबेस डायग्राम। इसके तो बस आपने टेबल ड्रैग करनी है और आप आपस में उनके रिलेशन बनाने शुरू कर दें। कोई भी क्विक वीडियो ले लेना 5 मिनट्स की, आप लोग ले सकते हो। देखते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस डायग्राम किस तरह बनानी है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। द मेन थिंग इज, जो प्रॉब्लम है उसको आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अगेन मैचेस किसी टूर्नामेंट में हो रहे हैं, आप जो भी है कोई भी एक स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, कि दो टीमें आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक वेन्यू के ऊपर, एक कैलेंडर के ऊपर मैच कर रही है। अब इसके अंदर आपको कोई आधी तो एंटिटी, मेरे ख्याल में 80% तो एंटिटीज मिल गई हैं। मैच, प्लेयर्स, कैलेंडर, वेन्यू, ठीक है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप बना के दिखाएं किस तरह बन रहा था। आप जब स्क्रीन पे देखते हो कोई भी टूर्नामेंट आता है तो आपको पूरे कैलेंडर आता है, आपका वो मेन पॉइंट है, वहां से आपने नीचे आना है। उसको इसको तोड़ते हुए आपने उसको समझते आपने अपनी एंटिटीज को निकालना है उसमें से। और यही सारे बिजनेस के अंदर है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है, ठीक है। वो मेन्यू जो है ना, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस मॉडल है ऑलमोस्ट। आप अगर उसमें से चीजें पकड़ने लग जाओगे तो आप पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का जो है ये डी डायग्राम बना सकते हो। इसी तरह अगर आप रिटेल शॉप पे जाते हो, टेल पे खड़े होते हो, तो आपको उस टेल के ऊपर जो जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो सब बिजनेस मॉडल है। आप उससे पूरी की पूरी डी डायग्राम बना सकते हो। तो यूं आपने देखना है कि भाई मैंने किस पॉइंट से शुरू करना है, वो उसकी हायरार्की सबसे हाई होनी चाहिए, और आपने फिर उसे ग्रीन तक आना है। आपने उसको तोड़ते हुए नीचे तक आना है कि कितना इसको तोड़ा जा सकता है। और इसकी एंटिटीज के अंदर भी कुछ एंटिटीज होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी टीम के अंदर एंटिटी क्या है? प्लेयर है, प्लेयर्स है, ठीक है। प्लेयर इज एन एंटिटी। तो एक टीम में क्या है? मल्टीपल प्लेयर्स है। वन टीम हैज मल्टीपल प्लेयर बट वन प्लेयर हैज ओनली वन कैप्टन। वन टीम हैज ओनली वन कैप्टन, 1-to-1, ठीक है। अब यूं देखें आप, तो फिर आप उसको समझते जाओगे कि भाई मैंने किस तरह रिलेशनशिप बनाना है। Thank you so much, Adil bhai. I'll be sharing this presentation with the हाँ, team on WhatsApp as well. और इसके हाँ। साथ साथ जो पहले मेरे resources अपने किए थे use, there were different presentations as well. I'll be sharing those as well. And that concludes our OLTP data introduction part of the BI training. The next steps would be to go into the data warehousing concepts and getting to know the OLAP models, getting to the BI reporting side of the इस, training program. But इसी को before इसी that, को हम इसी को ओ लैप में लेके जाना है। जो आप मॉडल बनाने लगे हो ना, इसी को फ्लैट करके हमने रिपोर्टिंग करनी है। तो इसको बनवाएं इनसे, OLTP बनवाएं सही तरह। absolutely, Adil bhai, absolutely. So this is it for you guys. आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करें, जो आप लोगों को पॉइंट्स कहे गए हैं उनको आप चेकआउट करें। और दिस इज अगेन अ सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम। आपको गाइड कर दिया जाएगा। यू हैव टू हैव योर ओन ड्राइव टू लर्न थिंग्स। आप लोग इसको देखें, एक्सटेंसिव रिसर्च करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती,
So feel free to ping me up, ping Adil Bhai up. You have the WhatsApp group now. And inshallah, see you in the next session. Take care, everybody. Thank you. Thank you. Take care.